नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के पहले सत्र की शानदार शुरुआत गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करके की गई। नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक और ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि AAFT में फिल्म का सबसे बड़ा जज्बा है। स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाते हुए डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि मारवा स्टूडियो में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लोग, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग और सबसे ज़्यादा उत्साही लोग हैं जो आगे जाकर भविष्य में पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा का नाम और बढ़ाएंगे। Third day of 14th Global Film Festival Noida 2021. Heartiest welcome to all of you. In these 2 days, we all been celebrating this beautiful day, the 30 years of Marva Studios, along with the 14th Global Film Festival. And I'm sure everyone is enjoying every session possible because we have tried our level best to make them absolutely entertaining, which is the first definition of cinema. इस कार्यक्रम में शेक्सपियर के ऊपर एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें ऑल आर्ट्स आर इक्वल दर्शाया गया है। दिग्गज एक्टर राहुल रवेल ने संदीप मारवा की तारीफ की। I must confess one thing. When I came here, I was very happy and came to the stage, sat down, and I kept waiting for somebody to call me and speak. Nobody did. So then I got convinced that they've forgotten who I am. So now I know that they've called me finally. So that's a great thing. Also, I think Sandeep himself should get admission into AAFT. Because the way Sandeep has recited everything and the kind of memory he has and the kind of expression he has as a director, that is something I think I missed all my life with the actor that that's something I want to say. That would make my dream. And we talking about Shakespeare. I have no regret और कोई शर्म नहीं है इसमें बोलना कि मेरी भी एक फिल्म थी जो शेक्सपियर के ही प्ले से बनी। तो दैट वाज बेताब, वाज टेलिंग ऑफ द शू। इस कार्यक्रम में दिग्गज एक्टर राहुल रवेल, एक्ट्रेस शाइनी दीक्षित, डायरेक्टर आर्यन सिंह, सीनियर एडवोकेट अनूप बोस, टैलेंटेड एक्टर जतिन सरना, डायरेक्टर राजीव चौधरी और दिग्गज एक्टर अमित बहल शामिल रहे। आज मैं स्टूडियो में इस स्टूडियो में यहाँ पे बैठा हूँ और मेरी जो जर्नी है वो इससे बिल्कुल अगले स्टूडियो में शुरू हुई थी, ईगल स्टूडियो में। सो वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ था और आज वो काम करके 10-11 सालों में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। सो आई थिंक जस्ट वांट टू से दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन योरसेल्फ. So believe in yourself and you can do whatever you want to. So that's only I want to say. Trust the process and keep going. और कुछ भी 2 दिन में नहीं होगा ये ध्यान रखना. 2 महीने में 4 महीने में कुछ भी नहीं होगा. प्रोसेस है, उसको चलने देना, उसको अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को लेते चलो. लाइफ इज नथिंग बट द जर्नी ऑफ एक्सपीरियंसेस. एंड उसके बाद देखते हैं क्या क्या करिश्मा होता है. Hi everybody, my name is Shaini and I've been acting since last 7 years and I am very passionate about acting as a profession. And when I see that कि हमारे इंडिया में we are so rich as a culture, we are so rich when it comes to acting, and when I look at everybody, the legends and the people I've seen up growing and I work with, I feel I'm out of words say. So that's the amount of love I have for this Indian cinema. आप लोग एकदम राइट जगह पे, एकदम जिसको कहते हैं ना हम लोग लाइट हाउस, जो मैंने कल भी कहा था, ही इज द लाइट हाउस. इतनी एक्चुअली एनर्जी जो होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. बिकॉज सारी जो चीजें उत्पन्न होती है वो एनर्जी से ही होती है. और बाप रे बाप एनर्जी. और एनर्जी के साथ साथ
जिस तरह का ये आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह का दिशा निर्देशन दे रहे हैं आप लोगों को, यू पीपल आर वेरी लकी. My very dear friends Sandeep Marwa, brothers and sisters of India, I always start on Swamiji's note, you see. And Sandeep Marwa began with the war cry of Chhatrapati Shivaji. And many tributes have been paid to Shivaji. But I think the greatest tribute that was paid to Shivaji was by none other than our messenger of Indian wisdom to the West, Swami Vivekananda. Wonderful being here and having fun. Such talented people. You all are really doing a wonderful job, extraordinary job. I would like to first congratulate Sandeep Marwa ji. He is actually a volcano of talent, volcano of motivation, I think. It's wonderful. May God give him all the more strength, power and success to continue doing this wonderful job. Good afternoon. Good afternoon, sir. First of all, I can't tell you how excited I am to be here because Sandeep ji and Ashok ji, we've been talking for the last 1.5 years during the pandemic. I have to visit the campus in Noida, and I'm pleasantly surprised with the infrastructure and with the enthusiasm of the students and the hospitality that Ashok Tyagi ji and Sandeep ji and the faculty and the students have been giving, not only me, I think all the guests, and it's also been a reunion of sorts to meet Rajiv after years, to meet up with Rajesh Khattar and to meet up with Anup ji and Deepak Tijori and all these people we don't get to meet in Mumbai, and of course Rahul ji, who I've met after a very long time, and meet Shiny and to meet wonderful talent like Jatin, who's an Aryan and Bosa. So it's great to be on this dais. इस कार्यक्रम में टैलेंटेड एक्टर जतिन सरना को एक्सीलेंस इन फिल्म्स OTT प्लेटफॉर्म्स का अवार्ड दिया गया. अंत में सभी अतिथियों को इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविजन मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. मैं तो ये कहूँगा कि स्टूडेंट के साथ साथ हमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे आकर सोचा था, कहा गया था कि कुछ वर्कशॉप्स वगैरह लेने, सिखाना है कुछ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ. ताकि अच्छा लगा मुझे बहुत यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करके. यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिग्निटरीज लोगों को आपने, इतने बुद्धिजीवियों को, इतने टैलेंटेड लोगों को संदीप मारवा जी ने, अशोक त्यागी जी ने यहाँ पे इन्वाइट किया. और ये एक ऐसा ग्राउंड होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जैसे जंगल में तालाब होता है. वहाँ पे शेर भी आता है, हिरन भी आता है, अलग अलग प्रजाति के सब लोग आते हैं, और वहाँ पे समागम जो होता है जैसे, तो ये बहुत अच्छा एक समागम हुआ यहाँ पे. अच्छा लगा मुझे. सर, फिल्में, सिनेमा और OTT, आजकल OTT ज़्यादा चल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? कितना डिफरेंस है? फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है? देखिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है. बिकॉज जितने ज़्यादा मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा माध्यम होंगे, आपको अल्टीमेटली तो आपको कहानी कहनी है. तो अगर आपको कहानी कहनी है तो वो क्या होता है कि हर एक जगह, हर एक चीज़ के एक अलग अलग उसके जो होता है, उसका डिज़ाइन अलग होता है. उसका जैसा प्लेटफॉर्म होगा उस हिसाब से आपको अपनी कहानी को डिज़ाइन करना होता है. पानी पूरी खाने का मज़ा जो आपको रेकड़ी पे आएगा, जो आपको ठेले पे आएगा, वो मज़ा आपको 5 स्टार होटल में नहीं आएगा. तो बेसिकली वैसे ही होता है कि OTT के सब्जेक्ट डिज़ाइन होते हैं. टेलीविज़न का जो प्रोग्राम होता है वो एक अलग तरीके से डिज़ाइन होता है. और जो मैजिक और जो एक्सपीरियंस जो सिनेमा का जो है, वो एक्चुअली OTT और टेलीविज़न के ऊपर आपको कभी नहीं मिलेगा. बिकॉज वो एक एक्सपीरियंस होता है. तो वो डिज़ाइन वैसी फिल्म होती है जहाँ पे आप अपने स्टार्स को देखते हैं, सीटियाँ हो जाते हैं, तालियाँ हो जाते हैं पूरे सिनेमा में एक साथ में. वो आपको OTT के ऊपर वो आनंद तो नहीं मिलेगा. खैर, लेकिन अल्टीमेटली फिर से मैं वही कहूँगा, आपको कहनी है कहानी, तो कहानी तो आप ऐड में कह दीजिए, कहानी आप टेलीविज़न पे कह दीजिए, कहानी आप OTT पे कह दीजिए. अनुभव है. मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे. मैं इस स्टूडियो को आज से करीब 10-12 साल पहले जब मैं बराबर वाले स्टूडियो में शूट करता था, तो काफ़ी बार यहाँ से गुजरना होता था. लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं मेहनत करते करते वहाँ तक पहुँचूँगा और यहाँ पर आकर इस तरह से आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा. सो आई एम फीलिंग रियली ग्रेट. सो इतना सारा प्यार मिल रहा है, सब बच्चे लोग खड़े हैं, देख रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. यस सर, एक्टर बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी आपके हिसाब से क्या होगी? कि उसको अच्छा फोटोग्राफर होना चाहिए और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. एक्टर होने की अच्छी क्वालिटी है, उसको सबसे अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए. ऑब्जर्वर
पैशनेट होना चाहिए और वो कितना लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और कितना डेडिकेटेड है वो अपने काम के लिए। सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो भी यहाँ पर सीखने आया है, जो भी इस फील्ड में काम करना चाहता है, पैशन और डेडिकेशन दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। 4 दिन में चमत्कार नहीं होते, उनको टाइम लगता है। तो आई थिंक वो पेशेंस की भी बड़ी ज़रूरत है, तो वो सब रहेगा। और अपने टैलेंट को पहचाने, टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको लगे टैलेंट है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं, तो लगे रहो।